Hello everyone, good morning. Welcome you back in the topic trigonometry. So, two things we are doing in these days. One thing is we are completing our revision. At the same time, we are moving ahead with the topic trigonometry. So, bit I can understand there is more work, but you have to manage it. You are in 10th standard. So, now you cannot say that there is a more work or there is a lot of work going on and I'm busy, the schedule is tight. Nothing, no excuses you should give right now. Okay, so start working. I'm sure things will be better soon. That means as soon as you start your revision, you will feel that you're doing something really very great job, and which will surely going to be helpful in your regular PT examinations. Okay, and believe me, one thing that what you have to keep in mind, that the scores that what in the final examination students get, it is not very different than the regular examination. There will be similar scores that what you get in the regular examination in the final examination. This is a common trend, believe me. So your PTs are extremely important. If you're not properly working for PT, you cannot work properly for your board examination. So one thing that what I can easily tell you here is your preparation for PT examination is same as preparation for board examination. So it is a part of board examination, you can say, and start preparing. Okay, so anyway, here is now my task is, that is trigonometry. So in the trigonometry, what we have done till this time, that I'll quickly in short time revise it. So two things we have learned. One is definition of sine, cos, tan. Sine, S-I-N-E hota hai, you know that. S should be small, C should be small, so all these letters should be small. Sine theta is opposite side upon hypotenuse. I am just writing in this manner now. Cos theta is adjacent side upon hypotenuse, and tan theta is opposite side upon adjacent side. You need to remember it. At any cost. Now, reciprocal of this, that means sine का reciprocal कौन है? Cosec है. Okay, cosec theta. Cos का reciprocal कौन है? Sec theta. You need to remember it. Tan का reciprocal कौन है? Cot theta. Okay, if it is a reciprocal, then you can easily write its definition: hypotenuse upon opposite. Sec theta is hypotenuse upon adjacent side, and cot theta is adjacent side upon opposite side. You need to remember it. Say it every day. Okay, say it every day. Sin theta क्या होता है? Opposite side upon hypotenuse. So close your eyes and try to remember it. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था कि कुछ फ्रेंड्स है. ओके, फ्रेंड्स का मतलब इन ट्रिग्नोमेट्रिक लैंग्वेज में कॉम्प्लीमेंट्स है. तो वो कॉम्प्लीमेंट जो है वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी तो याद रखो कि ये फ्रेंड्स है एक दूसरे के. कौन कौन है फ्रेंड्स? साइन का फ्रेंड जो है वो कोसाइन है, तो इसका मतलब कोसेक, कॉस. ठीक है, साइन का फ्रेंड कौन है? कॉस. टैन का फ्रेंड कौन है? कॉट. एंड कोसेक का सेक का फ्रेंड कौन है? कोसेक. ठीक है, तो फ्रेंड्स को याद रखो. As I have already said, only writing cos or only writing sine is not having any meaning. You have to associate that with the angle that we have seen. The next one, in the right angle triangle ABC, you can see in the diagram here, one angle is theta, the other one is going to be 90 minus theta. Okay, they are complementary of each other. That what also we have seen. So this is the thing that what we have discussed of the trigonometry. But unless and until you remember these all things, remember the definitions, you cannot proceed further. Okay, so remember the definitions clearly. Yeah, you have to keep all these things in your mind. Okay, when you will come in front of me, that time surely I will get it done, but for solving questions you need to remember it. Okay, so we'll go for the question now. Question number 1 is very simple, so you can check that. I'm sending the PDF today, तो यू कैन चेक इन द PDF एंड यू कैन कंप्लीट दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग शुरू करते हैं. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल 90 एट B. तो हियर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल 90 एट B. तो हियर इज ABC वेयर AB इज 9 एंड BC इज 40. ओके, यू ओके जस्ट अ मिनट. BC इज 40. So you can find out AC, right? You can easily find out the AC. And then you have to find sin A, cos C, tan A and cot C. ओके, चेक करते हैं. तो पहले AC फाइंड करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर इज 81, BC स्क्वायर इज 1600. तो योर आंसर इज 1681 इज AC स्क्वायर. वेरी क्लियर.
दैट इसका रूट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ए सी यू कैन गेस इंस्टेड 40 से आगे होगा एंड वेरी क्लोज टू 1600, तो ये 41 होने के चांसेस है. तो यू कैन गेस एंड मल्टीप्लाई 41 इंटू 41, यू विल अंडरस्टैंड इट इज़ 41. ठीक है, तो ए सी इज़ 41, तो यहाँ पे मैं 41 लिख लेता हूँ. एंड नाउ आई कैन फाइंड आउट साइन ए. तो साइन ए क्या होता है, तो डेफिनेशन तो याद रखना पड़ेगा. देयर इज नो ऑप्शन. साइन ए इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो नेवर राइट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यू कैन राइट फ्रॉम द डायग्राम. तो साइन ए का अपोजिट साइड, तो बी सी अपॉन ए सी, राइट. तो इट इज़ 40 अपॉन 41. दिस इज वे हाउ वी हैव टू राइट इट. कॉस सी, व्हाट इज कॉस सी? कॉस इज अपोजिट साइड नहीं, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो कॉस सी का एडजेसेंट साइड, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए सी. तो इट इज़ अगेन 40 अपॉन 41. ओके, tan A, what is the definition of tan A? तो remember it, opposite side upon the adjacent side. तो tan A का opposite side, तो BC upon adjacent side upon AB. तो your answer is यहाँ पे क्या आएगा 40 upon 9. So easy. ओके, cot C, तो cot of C क्या होगा? cot of C पहले definition को याद करो. It is adjacent side, है ना. It is adjacent side upon opposite side. तो C का adjacent side is BC अपॉन अपोजिट साइड इज ए बी. तो इट इज़ 40 अपॉन 9. तो ये कब आएगा आपको इतना ईजीली, कब आएगा? जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चंस की. तो मैं क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन, आज वही काम करना है. तो इस प्रैक्टिस में आपका दो चीज़ें हो जाएंगी. एक तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एंड सेकंड थिंग यू विल रिमेंबर द डेफिनेशंस एज वेल. ओके, सो एज एंड व्हेन यू विल गो ऑन सॉल्विंग यू विल रिमेंबर इन अ बेटर वे. तो ठीक है, मैं ज़्यादा अभी वर्क नहीं करने वाला हूँ, आपको खुद से करना है. लेकिन हाँ, ये जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है ये मैं आपको सिखा देता हूँ. ये जो दिख रहा है अभी देखो, यहाँ तक तो हमने क्या किया था, वी वेयर गिवन अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिया था एंड वी यूज्ड द रेशियोज अमंग द एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट. बट नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन द क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू चेक, राइट एंगल ट्रायंगल इज नॉट गिवन. आई एम गिवन हियर ओनली साइन ऑफ थीटा is equals to 3/5. That's the only thing given, isn't it? एंड आपको फाइंड करना है रिमेनिंग एंगल्स, कुछ एंगल्स के बारे में आपको फाइंड करना है. तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, आपको मैं बता देता हूँ. कुछ नहीं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, सिंपल वाला ट्रायंगल ड्रॉ करो. यहाँ पे मे भी ABC हम लोग को नाम देते हैं. उसमें से कोई भी एक एंगल को थीटा करो जो 90 नहीं हो, मतलब एक्यूट एंगल को थीटा कर दो. कोई भी एक्यूट एंगल, A को भी चल जाता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन C मैं कर देता हूँ अभी राइट नाउ. ठीक है, अभी जो दिया है यहाँ पे जो गिवन है इसके बारे में सोचो मत. रेशो क्या दिया है उसके बारे में सोचो. रेशो साइन थीटा दिया है, तो यहाँ पे इन द ट्राइंगल साइन ऑफ थीटा क्या होगा, ऐसे अगर मैंने पूछा तो आप क्लियरली बोलोगे कि ये होगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट. साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इट इज गोइंग टू बी AB अपॉन AC. बट व्हाट आई एम गिवन साइन थीटा इज 3/5. बात समझ में आ रही है? इसका मतलब AB 3 हो सकता है एंड AC क्या हो सकता है, 5 हो सकता है. बराबर है, इज दिस क्लियर? लेकिन हाँ, वन थिंग इज दैट कि इट इज़ नॉट सेपरेट वैल्यूज एज AB एंड AC, इट इज़ रेशियो. जब रेशियो आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो लेते हैं. यू रिमेंबर दैट टू सेपरेट द रेशियो. ऐसे अगर होता ना हमारे पास A/B इज इक्वल टू 2:3, तो हम लोग क्या करते हैं, A/X करते हैं एंड B क्या करते हैं, 3x करते हैं. ये कॉमन चीज़ है. तो वही है, बस फॉर्मेट कैसा है, रेशियो नहीं है, फ्रैक्शनल फॉर्मेट है, लेकिन वही तो रेशियो होता है, राइट. तो ये रेशियो फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कॉमन मल्टीपल लेते हैं. लेट द कॉमन मल्टीपल बी, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स के कुछ भी ले सकते हैं. तो देयरफॉर यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू 3x हो जाएगा एंड ए सी क्या हो जाएगा, ए सी गोइंग टू बी इक्वल टू 5x हो जाएगा. बराबर है. तो यहाँ पे मैं डायग्राम में वो मार्क करता हूँ. तो ये हो गया 3x और ये हो गया 5x. नाउ इज इट पॉसिबल टू फाइंड आउट ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम ऑफ कोर्स. तो AB² इज इक्वल्स टू, अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज से शुरू कर सकते हैं. तो इट इज AC² माइनस BC², राइट. यू गॉट दैट, राइट. तो AC² क्या होगा, 25x², 5x का होल स्क्वायर 25x². BC क्या हो जाएगा, 3x द होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9x². तो माई टोटल आंसर इज यहाँ पे 16x² हो जाएगा, विच इज AB². तो विच इम्प्लाइज AB इज इक्वल्स टू, इसका अगर मैंने रूट निकाला तो इट इज गोइंग टू बी 4x, राइट.
अभी आप बोलोगे यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों नहीं लिया, बिकॉज नॉर्मली हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे तो हम लोग नॉर्मली प्लस और माइनस करते हैं, लेकिन ये ज्योमेट्री है, याद रखो ज्योमेट्री में कभी भी हम लोग माइनस साइन नहीं लेते as in terms of side and all. Therefore, we avoid taking minus sign in such cases. But keep in mind, it is always plus or minus. Anyway, AB is 4x. तो ये आ गया मेरा AB 4x आ गया. तो अभी I can find any other values or any other ratios like cos theta. So now I can go for cos theta. क्या होगा cos of theta? सिंपल सी बात है यार, cos of theta क्या होगा, adjacent side upon hypotenuse. याद रखो ना, फॉर्मूला याद रखो, adjacent side upon hypotenuse. तो cos of theta adjacent side, थीटा का adjacent side तो BC हो जाएगा, अपॉन hypotenuse क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा. ओके, सो इट इज 3x अपॉन 5x, कितना हो जाएगा बताओ, 3/5. सिंपल सी बात है, एक लाइन में आंसर रेडी. tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, याद तो रखना पड़ेगा फॉर्मूले, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो इसका मतलब AB अपॉन BC. हमेशा बोलते रहो, ये फॉर्मूले बोलते रहो. तो 4x अपॉन 3x, x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज सेक थीटा. अभी ये अगर सेक कोसेक वगैरह आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसका उल्टा वाला जो कोण है, अभी सेक का रेसिप्रोकल कौन है, तो कॉस है, याद रखो. ये देखो यहाँ पे सेक का रेसिप्रोकल कौन है, कॉस है. तो सेक क्या हो जाएगा, जैसे कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, वैसे सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट. तो हाइपोटेन्यूज मतलब हो गया AC अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब हो गया BC. ये तो यहाँ पे है ही कॉस थीटा, उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे. तो इट इज़ 5x अपॉन 3x. तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/3. सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, इजंट इट. रेसिप्रोकल को याद करना पड़ेगा. ओके, कौन से रेसिप्रोकल है, कौन से रेशियोज है, यू हैव टू रिमेंबर इट, देयर इज़ नो ऑप्शन. चलो अभी बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ. अभी आप बोलोगे ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, लेकिन करना तो पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन. बट स्टिल आपको मैं हिंट दे देता हूँ या फिर कुछ पार्ट ऑफ इट आई विल सॉल्व इट. जैसे कि कॉस ऑफ थीटा, फोर्थ क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग. कॉस ऑफ थीटा इज गिवन दैट इज 8/17, ऐसा कुछ तो दिया हुआ है, 8/17. नो प्रॉब्लम. तो ट्रायंगल तो ड्रॉ करना बनता है. एक थीटा हम लोग लेंगे, ABC की जगह पे आप PQ और भी ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, अभी हम लोग लेंगे कॉस ऑफ थीटा हियर. ओके, हियर इफ आई टेक अ कॉस ऑफ थीटा in terms of triangle, it is adjacent side upon hypotenuse, right? So it is BC upon AC. But what is that given equal to, 8/17? This implies BC is equals to 8x and AC is equals to 17x. तो BC is equals to 8x and AC 17x अगर मैंने लिया, I can find out easily AB square by using Pythagoras theorem. तो AB square is equals to AC square minus BC square, which is 17 square मतलब 289x square minus 64x square, right? Clear? तो अभी 289 minus 64 कितना हो जाएगा, चेक करते हैं. 64, तो ये हो जाएगा 5, 8 minus 2, 225x. तो what can be AB? Very clear, it is 15x. राइट, तो AB आ गया मेरा 15x. अभी डायग्राम की तरफ देखो एंड बाकी ऑल द रेशियोज फाइंड करने हैं अदर देन कॉस. कॉस तो दिया हुआ है, तो साइन फाइंड करो. साइन थीटा में अभी ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, कॉस तो दिया हुआ है, टैन फाइंड करो. उसके बाद कौन आता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, एंड देन टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा. तीन ही तो पेयर है ना, इजीली यू कैन रिमेंबर इट, है ना, इजीली आपको याद रह जाएगा. ठीक है, सिंपल सी बात थी, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था. चलो आगे बढ़ते हैं. स्लोली हम लोग इसमें बिल्ड करेंगे. जितना आप लोग स्लो जाओगे, आराम से जाओगे ना, उतना जल्दी याद रहेगा. याद रखो, जितना फास्ट जाओगे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहेगा और कुछ भी समझ भी नहीं आएगा. तो बिगनिंग से दिमाग में रखो कि याद करना बहुत ज़रूरी है. अनलेस एंड अनटिल यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू, आगे डिफिकल्ट जाएगा, आगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बिल्ड कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को. आपका पहला ही कॉन्सेप्ट वीक है तो आगे नहीं जा पाओगे. तो याद तो रखना ही पड़ेगा. कौन क्या क्या याद रखना है, डेफिनेशन से याद रखना है, कौन किसका रेसिप्रोकल है ये याद रखना है. दैट्स इट, और कुछ ज़्यादा बोला ही नहीं मैंने. ओके, साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक है. कॉस का कौन है, सेक है. एंड टैन का कौन है, कॉट है. इसके कुछ ट्रिक्स भी है, लेकिन बिलीव मी ट्रिक्स से आप लोग याद नहीं रख पाते, बस ट्रिक याद रह जाते हैं. ऐसे हो जाता है, मैंने देखा है बहुत बार. तो इसलिए ट्रिक हम लोग यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे. रिमेंबर,
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन, कोसेक ए। अभी आप बोलोगे यहाँ पे तो रेशो नहीं दिया है, यहाँ तो रूट 5 दिया है, बट रूट 5/1 हो सकता है, राइट। तो कोसेक ए अगर मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन थीटा नहीं दिया है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ये रहा मेरा बी। मैं यहाँ पर भी ए ले सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोसेक ए अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल देखना है। कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल है? साइन का है, एग्जैक्टली साइन का है। आपको 90% ऑफ द स्टूडेंट एटलीस्ट मस्ट बी रिमेंबरिंग इट ना, कि कोसेक का ये कौन है, रेसिप्रोकल कौन है, साइन है। तो अगर साइन है कोसेक का रेसिप्रोकल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो ये डेफिनेशन क्या हो जाएगा उसका, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड। लेकिन ये तो लिखना नहीं है, हाइपोटेन्यूस AC है अपॉन अपोजिट साइड BC है, विच इज गिवन इक्वल टू √5/1। तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा √5x हो जाएगा, एंड BC कितना हो जाएगा, ओनली x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इट्स सिंपल अप्रोच, वेरी वेरी सिंपल अप्रोच, ठीक है। ओनली 1x ना, तो x हो जाएगा, राइट। अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम चलो पहले पुट कर देते हैं। AC कितना है, √5x, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो इट इज √5x स्क्वायर के √5x होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5x स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो व्हाट इज AB हियर, इट इज 2x, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। तो अभी हम लोग क्या करने, फाइंड ऑल द रेशियोज कर सकते हो अभी। फाइंड AB तो मिल गया मुझे। अभी आप बोलोगे इस √5 का क्या करना है, कुछ नहीं करना, वैसे ही रखना है √5 बस, दैट्स इट, ठीक है। अभी साइन थीटा, अगर मुझे साइन ऑफ A चाहिए, फाइंड ऑल द अदर रेशियोज ऑफ एंगल A, तो साइन A चाहिए। साइन A क्या होगा, अपोजिट साइड BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AC, क्या हो जाएगा, x अपॉन √5x, तो 1/√5 इज माई आंसर, फिनिश्ड, व्हाई टू वरी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और डिफिकल्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। देखो यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। साइन थीटा दिया है 1/3 है, और आपको ऐसा कुछ फाइंड करना है, ऐसे कुछ तो फाइंड करना है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, है ना। चलो देखते हैं। कुछ नहीं, मैंने अगर आपको एक चीज़ बता दी, मतलब ये बता दिया, तो आप लोग ये भी सॉल्व करोगे, ये भी सॉल्व करोगे ईजिली। चलो देखते हैं, पहले इसका मीनिंग भी समझते हैं, साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर का मीनिंग, सब कुछ आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ समझा दूंगा मैं, डोंट वरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आई एम सॉल्विंग। आपको याद रखना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 अगर मैंने सॉल्व कर दिया, तो आपको ये 8 एंड 9 खुद से करना है, ओके। सो कीप दैट इन माइंड कि ये भी आप लोगों को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं 7th कर रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। चलो स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ करो, वही कॉन्सेप्ट है, ABC आ गया, क्योंकि देखो ये तो क्लियर सी बात है कि साइन थीटा दिया है, और मुझे बाकी रेशियोज की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे डाल देना है, ओके। जस्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट मैनर, दैट्स इट। तो ये आ गया मेरा थीटा, हियर इज माई थीटा, एंड व्हाट डू आई नो अबाउट थीटा, दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज AB अपॉन AC, ओके। सॉल्व करते करते आपको ये अभी याद हो चुका होगा, है ना, हो जाएगा अभी। तो इट इज ऑलरेडी इक्वल टू 1/3, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, AB इज x and AC is 3x, right? So now what can I do here? After this, I will put the value in this particular expression there in the triangle. So here is x. So BC square is equals to AC square minus AB square, which is 3 square. AC 3 9x square minus x square, क्या आएगा, 8x स्क्वायर आएगा। तो व्हाट इज BC इज √8x, ऐसे हो जाएगा। BC क्या आ जाएगा, √8x। यू कैन इवन राइट दैट √x एज 2√2 एज वेल, ओके, बट आई डोंट वांट दैट, ठीक है, वैसे ही रखा। अभी मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरे पास तीनों एंगल्स आ गए, तीनों साइड्स आ गए, सॉरी। देन व्हाट आई हैव टू सॉल्व, एक क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए मुझे, साइन चाहिए एंड कॉस चाहिए। साइन तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, साइन कितना है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। अभी कॉस थीटा चाहिए, व्हाट इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू
चलो देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला बताओ. इट इज़ नथिंग बट व्हाट, adjacent side upon hypotenuse. So it is BC upon AC. What is that? रूट 8x अपॉन 3x. तो कितना हो जाएगा? रूट 8 अपॉन 3. ये आ गया मेरा कॉस थीटा. ना अभी ये मुझे फाइंड करना है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा ऐसे बोलते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू. अब ये बोलोगे इसका मीनिंग क्या है. अब ये समझा देता हूँ मीनिंग क्या है. साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा द होल स्क्वायर. ठीक है. एंड कॉस स्क्वायर थीटा मतलब स्क्वायर. अभी आप बोलोगे कि ऐसे कैसे लिखते हैं, ये बीच में स्क्वायर कैसे लिखते हैं. तो एक्चुअली कैसे हो जाता है, अगर मैंने साइन थीटा स्क्वायर किया, ऐसे लिखा, तो क्या होता, वो स्क्वायर जो है वो थीटा को लगता ना, ऐसे लगता कि वो स्क्वायर सिर्फ थीटा को है. तो साइन का क्या करेंगे. अभी फिर आप बोलोगे फिर ये जो स्क्वायर लगा है ये फिर साइन को लगा है सिर्फ, ऐसे नहीं है. साइन इंडिविजुअली कुछ मीनिंग नहीं है उसका, इसलिए साइन को स्क्वायर लगाया, इसका मतलब होता है कि साइन थीटा का ही स्क्वायर है वो, राइट. बट एनीवे राइट नाउ यू कैन कंसिडर अंडरस्टैंड इट के साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा द होल स्क्वायर. ठीक है. तो साइन थीटा द होल स्क्वायर. तो साइन थीटा क्या है यहाँ पे देखो, साइन थीटा इज 1/3, तो इट इज 1/3 द होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इट इज रूट 8/3 द होल स्क्वायर. बराबर है. जो कॉस थीटा है, जो साइन थीटा है, उसका स्क्वायर कर दिया. इसका स्क्वायर हो गया 1/9 प्लस इसका स्क्वायर हो गया 8/9, तो क्या हो जाएगा 9/9 एंड द आंसर इज 1. तो आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है 1. सिमिलरली कैन यू फाइंड द अदर वन, कैन यू फाइंड ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. आई होप यू कैन डू इट, आई जस्ट होप यू कैन डू इट. ओके. तो आई जस्ट कैंसिल दिस. रूट में आ सकता है, कुछ वियर्ड आंसर आ सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट यू हैव टू मैनेज ऑल दैट. ओके. जो भी हो, आप 10th में हो, अभी आपको मैनेज करना आना चाहिए. जो भी हो, रूट में हो आंसर, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, यू शुड एबल टू मैनेज इट. तो चलो मैं बस 8th क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ. कोसेक ए इज इक्वल टू, अगर 2 है तो मैं बाकी वैल्यूज आपको बता देता हूँ कितने हैं. ठीक है. तो साइन ए हो जाएगा 1/2, कॉस ए हो जाएगा रूट 3/2. ठीक है. और क्या चाहिए, कॉट ए चाहिए, तो कॉट ए हो जाएगा 1/√3, नहीं सिर्फ √3. तो ये वैल्यूज़ है, मुझे याद है, मैंने बस इसलिए यहाँ पे लिख लिए. आपको तो फाइंड करना है, देयर इज़ नो ऑप्शन. आपको अपना ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके फाइंड करना है. मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आई वांट टू शो यू कि कितना वियर्ड आंसर इसका आता है. तो एक आंसर देखते हैं, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू, साइन ए क्या है 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए √3/2. देखा कितना वियर्ड आंसर आ गया. अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अरे एक नंबर सिंपल काम है. देखो मैं बताता हूँ, ए अपॉन बी होल डिवाइड बाय सी अपॉन डी, अगर ऐसा हो तो हम लोग इसको कैसे लेते हैं, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी. ये है सिंपल फ्रैक्शन, ये है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो डिनोमिनेटर है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट. आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा. ठीक है. कभी कभी यही कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन ऐसे भी आता है, ए अपॉन बी होल डिवाइड बाय जस्ट सी आता है. सी का मतलब क्या होता है, अपॉन 1. सिंपल सी बात है ना, तो वो 1/c हो जाएगा. एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है. बस याद रखो इस चीज़ को कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दैट्स इट. ठीक है. लेकिन ये तो फ्रैक्शन नहीं है, नीचे जो दिया है डिनोमिनेटर में वो फ्रैक्शन नहीं है, वो कुछ एडिशन है. तो पहले इसको सॉल्व करते हैं एडिशन को. तो 1/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3/2. ठीक है. बात समझ में आ रही है. अभी ये आ गया कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अंडरस्टैंड इट, 2/2 प्लस √3. तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने क्या किया, रेसिप्रोकल करके ऊपर भेज दिया. ठीक है. फॉर्चुनेटली 2 and 2 इज गेटिंग कैंसिल, तो 1/2 प्लस √3. ये है आपका आंसर. You need not to rationalize it. If you want to rationalize, if you wish to do that, you can do that, no problem. But right now कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करते हैं. ठीक है. डन. रैशनलाइज करके भी आंसर क्या आएगा मैं बताता हूँ आपको, 2 - √3 आएगा अपॉन 1.
ठीक है, पता है नहीं कैसे करते हैं, 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, नीचे आएगा 4 माइनस 3, किया है हमने ये 9th स्टैंडर्ड में। चलो ठीक है, रैशनलाइज करके आंसर लिखते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका। अभी बी क्या है, कॉट ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, मतलब वही चीज़ है ना, कॉट ए प्लस जो पहला वाला आंसर आया था, कॉट ए क्या है, कॉट ए है रूट 3 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए का आंसर क्या है, 2 माइनस रूट 3। अभी देखो क्या हो रहा है, रूट थ्री गेटिंग कैंसिल, आंसर इज 2, ये आ गया है ना, जो आंसर दिया था वही मुझे आ गया। इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक, मस्त मज़ा आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू कंप्लीट योर अदर क्वेश्चंस एज वेल इन द सेम वे। 9th क्वेश्चन भी आपको अभी कंप्लीट करना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये तो इजीली आपको समझ में आ गया, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं हुआ। ये आप लोग खुद से कर सकते हो, लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ खुद से भी कर सकते हो, मैं बस बता देता हूँ। ये 24 है, ये 10 है, AC आता है 26 पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, साइन ऑफ 90 माइनस सी, सबसे पहले ये मीनिंग समझ लो। 90 माइनस सी मतलब ए, तो इसका मतलब होता है साइन ऑफ ए। देखो ना, 90 माइनस सी मतलब एंगल ए। अभी साइन ऑफ एंगल ए मतलब क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BC अपॉन AC। आ गया मेरा आंसर। कॉस सी तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, कॉट ए भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। 90 माइनस टैन ऑफ 90 माइनस ए, इसका मतलब क्या देखते हैं, टैन ऑफ 90 माइनस ए मतलब क्या है, 90 माइनस ए मतलब C, सो इट विल बी टैन ऑफ C। एंड व्हाट इज टैन ऑफ C, इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। टैन ऑफ C का अपोजिट साइड तो AB अपॉन BC, एंड दैट्स इट, यू विल गेट योर रिजल्ट, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी वही चीज़ है जो हमने पहले की हुई थी, DI ABC, राइट एंगल एट C, सब कुछ दिया है। टैन ऑफ ए दिया हुआ है 1 अपॉन रूट 3, 1/√3 है, रूट 3 लग सकता है आपको, आपकी PDF में ये ठीक से होगा, तो थोड़ा सा ऊपर चला गया। आपको ये फाइंड करना है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, या फिर कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये फाइंड करना है। सॉल्व करें, चलो दिखा देता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रायंगल ABC जो दिया है वो फॉलो करेंगे। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C ऐसे दिया है। टैन ऑफ ए, तो ये है मेरा ए थीटा। क्या होता क्या है टैन ऑफ ए, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, BC अपॉन AC, विच इज गिवन इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो हियर BC इज इक्वल टू x, AC इज इक्वल टू रूट 3x। तो BC x आ गया, AC आ गया रूट 3x। AB स्क्वायर फाइंड करते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है, AB इज हाइपोटेन्यूस, याद रखो। तो ये आ जाएगा रूट 3 स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो कितना आ गया मेरा अभी, 2x। दैट्स इट, आधा तो काम हो गया, AB आ गया 2x। अभी क्या करना है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी हमें फाइंड करना है। हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे, साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए सॉरी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्वेश्चंस मैंने पर्पसली ऐसे दिए हुए हैं, आपको ये बस मीनिंग समझ में आए। डॉट का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो पर्पसली मैंने ऐसे सिम्बॉल्स बीच बीच में यूज़ किया है, सो दैट यू विल क्विकली अंडरस्टैंड इट एंड आई डोंट हैव टू वेस्ट माई टाइम इन एक्सप्लेनिंग ऑल दैट। तो डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। इन ट्रिग्नोमेट्री हम लोग डॉट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन साइन माइट लुक लाइक मल्टीप्लिकेशन साइन, ये हो गया, multiplication sign might look like x. That's the reason what we do, instead of multiplication we use dot. So after all, after this maybe you also might need to use multiplication sign in the expression or in the solution. So that time instead of multiplication sign we are going to use dot, or else no dot मतलब nothing. Okay, साइन अगर ऐसे भी लिखा हो, साइन ए कॉस बी, इसका भी मल्टीप्लिकेशन ही मीनिंग होता है।
ठीक है, रिमेंबर दैट। एनी तो साइन ए इन टर्म्स ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, देखिए साइन ए इज अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज 1/2। देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। कॉस बी क्या होता है, कॉस ऑफ बी, कॉस बी, तो बी का कॉस एडजेसेंट अपॉन ये वाला, तो 1/2 अगेन, प्लस कॉस ए क्या है, एडजेसेंट अपॉन मतलब √3/2 इंटू साइन बी क्या होता है, साइन बी, साइन ऑफ बी इज अपोजिट टू सेम √3/2। तो चलो वर्क करते हैं, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4 एंड द आंसर इज 4/4 1। देखा, बहुत ईजी था, है ना। चलो आप लोग नेक्स्ट वाला खुद से सॉल्व कर सकते हो इन द सिमिलर वे। कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, बस आपको ट्राई तो करना पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन, सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो वैसे ही आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू कंप्लीट द 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। आई होप यू कैन डू दैट। ये सब हम लोग कर रहे हैं किस लिए, कैलकुलेशंस एंड फॉर्मूले याद करने के लिए। तो आपको 13 तक, क्वेश्चन नंबर 13 तक आज कंप्लीट कर देना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से, ओके। सेकेंड हमने किया था, 1 हमने नहीं किया है, लेकिन डायग्राम देखो आपको समझ में आ जाएगा, 1 ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो 1 बाय 1 इफ़ यू गो ऑन सॉल्विंग यू विल स्टार्ट रिमेंबरिंग एज वेल। एक बात याद रखो कि कोई भी फॉर्मूला पेज देख के कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, यू हैव टू रिमेंबर एंड देन राइट इट। तो फॉर्मूला पेज सामने रख के आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। गलतियाँ हुई तो चलेगा, और इसके मैं आंसर्स आज सेंड कर रहा हूँ, यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि थोड़े क्रिटिकल आंसर्स है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैं इसके आंसर्स भी सेंड करता हूँ आज, लेकिन करना तो काम आपको खुद से ही है, देयर इज़ नो ऑप्शन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।